children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Habitat and Adaptation. Introduction. Different kind of living beings live in different places. Naturally, camels and cacti are found in a desert, while a hilly region will have plenty of oaks, pines, deodars and yaks, etc. Now, where would you look for deer in a forest? Would you look for them in the same places you would look for birds and snakes? Probably not. You would expect to find deer among the trees and bushes in the forest, the birds in the branches of the trees and the snakes on the ground. अच्छा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं नेचुरली. जैसे कैमल्स एंड कैक्टस की बात करें तो ये आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं. अगर आप हिली रीजन पे जाते हैं वहाँ पे आपको ओक्स के ट्रीज, पाइन्स के ट्रीज, देवदार के ट्रीज ये सब मिलेंगे, राइट. अब आपको डियर कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट में. और सेम प्लेस पे आपको बर्ड्स या स्नेक्स भी मिलेंगी? नो. आपको डियर मिलेगा ट्रीज या बुशेस के पास फॉरेस्ट में, जबकि बर्ड्स आपको ट्रीज की ब्रांचेस में मिलेंगी एंड स्नेक्स आपके ग्राउंड में मिलेंगे. 3.1 हैबिटेट. The habitat literally means it inhabits or it dwells. The place where an organism lives or the place where one would find a particular organism is known as its habitat. The habitat of an organism represents environmental conditions suitable for its proper growth. A habitat provides its food and shelter. Plants have habitats too. The beautiful orchid grows from the branches of tall trees in a rainforest, so the branches of these trees are the orchid's habitat. Habitat usually refers to a large area such as pond, a forest, an estuary, a desert or an ocean. Habitat का मतलब क्या होता है? वो particular place जहाँ पे एक organism रहता है. उसको बहुत ही simple words में हम कहें, किसी भी living being का जो address है, राइट, जहाँ पे वो रहता है उसका हैबिटेट होता है. अब उसके जो जिस हैबिटेट में रहता है वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के लिए सारे जो कंडीशंस है, सूटेबल कंडीशंस होते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, राइट. हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, राइट. अब आपके जैसे देखोगे आप, जैसे ब्यूटीफुल ऑर्किड जो है आपके, ये आपके ग्रो करते हैं टॉल ट्रीज़ के ब्रांचेस में, रेन फॉरेस्ट में, है ना. तो ये जो ब्रांचेज हैं इन ट्रीज़ की वो क्या है? ऑर्किड्स हैबिटेट. तो हैबिटेट यूजुअली रेफर करता है जैसे कि लार्ज एरिया, जैसे पॉन्ड है या फॉरेस्ट है या फिर एस्चुरी या डेजर्ट या फिर ओशन. 3.2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. देखिए आपके 3 तरह के हैबिटेट्स हैं. एक है आपका एक्वेटिक हैबिटेट, एक है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड थर्ड वन इज एरियल और आर्बोरियल हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट. Aquatic habitat may be fresh water or marine sea water. It includes lakes, reservoirs, ponds, springs, streams, rivers, seas and oceans. Terrestrial habitat. Land is the most variable habitat. It includes forests, deserts, mountains, etc. Aerial or arboreal habitat. Although air is not a suitable medium to support life, but some terrestrial animals have become adapted for aerial existence. Insects, birds and bats are common examples of this category. देखिए एक्वेटिक हैबिटेट में आपके जो आपके सोर्सेज ऑफ वाटर है, जैसे कि लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपके आते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन. एरियल या आर्बोरियल की बात करें हम तो देखिए एयर जो है आपका एक सूटेबल मीडियम तो नहीं है, बट कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस एरियल एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे कि इंसेक्ट है या बर्ड्स हैं या बैट्स हैं. 3.3 अडेप्टेशन टू environment in plants. Plants adapt themselves to the environment they live in. A large number of plants live in average or optimum water supply. These plants are known as mesophytes. Many plants have adapted to excessive water supply. These are known as hydrophytes. Plants like cacti are adapted to grow in dry habitat. Such plants are called xerophytes. Some plants grow in mountainous regions and adapt to conditions prevailing there. अरे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऑप्टिमम वाटर सप्लाई में सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है मेसोफाइट्स. और जिनको ज़्यादा वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है वो आपके होते हैं हाइड्रोफाइट्स. एंड जिन प्लांट्स को बहुत थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, यानी जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे कि आपके डेजर्ट में, उन्हें हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स. Adaptations in mesophytes. Mesophytes grow in moist habitats
and well aerated soils. The following features indicate the adaptation in mesophyte. A. Their root system is well developed. B. Leaves are generally large, broad, thin and variable in shape. C. Stems are generally aerial and have many branches. अब देखिए इनके फीचर्स क्या हैं, इन्होंने किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है. सबसे पहले इनकी जो रूट सिस्टम है दैट इज़ वेल डेवलप्ड. लीव्स इनकी बहुत बड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं और वेरिएबल होती हैं शेप. स्टेम जो जनरली एरियल होती हैं और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. Adaptations in hydrophytes. Generally, these plants do not face the problem of transpiration and have the following adaptation features. A. Roots. Because of plenty of water, roots in such plants are of secondary importance. These are either poorly developed as in hydrilla or completely absent as in cretophyllum. B. Leaves. The leaves are thin, long and ribbon shaped as in Vallisneria or finally dissected as in Ceratophyllum. Floating leaves are large and flat as in Nilambo. C. Stem. In most cases, the stem is long, slender, spongy and flexible. Example, Hydrilla and Potamogeton. अब देखिए अडेप्टेशंस हाइड्रोफाइट्स में क्या होती है, जैसे कि रूट्स है तो क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर होता है तो रूट का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हो जाता है. तो या तो इनकी पोअरली डेवलप्ड रूट होती है जैसे कि हाइड्रिला में, या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होती है जैसे कि सेरेटोफाइलम में. लीव्स इनकी थिन होती है, लॉन्ग या फिर रिबन शेप की होती है जैसे कि वेलिसनेरिया के केस में. ये फाइनली डाइसेक्टेड होती है. अगेन दिस इज द एग्जांपल. फ्लोटिंग लीव्स बहुत लार्ज और फ्लैट होती है जैसे कि आपका नीलम्बो में. एंड स्टेम मोस्ट केसेस में जो स्टेम होती है काफ़ी लंबी और स्लेंडर, पतली होती है, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल होती है जैसे कि इन केसेस में. अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स. Xerophytes are adapted to grow in dry habitats and drought conditions. In these habitats, the rainfall is very brief. These plants adapt themselves to store water and avoid loss of water in dry conditions. As such, they have the following adaptation features. A. They are animals and complete their life cycle in very short period to avoid wet conditions. B. Many of these plants have spines instead of leaves to avoid water loss. C. Their stems, leaves and roots are fleshy for accumulation of water during brief rains. D. Some plants shed their leaves under conditions of deficient rainfall. Some common examples of xerophytes are Capparis, Opuntia and Euphorbia. जबकि xerophytes आपके बहुत ही ड्राई कंडीशंस में होते हैं, ऐसे हैबिटेट में होते हैं. तो क्या होता है कि जिस हैबिटेट में होते हैं रेनफॉल तो बहुत थोड़ा होता है, तो प्लांट्स अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो पानी को स्टोर करेंगे जिस राइट, एंड जो लॉस है वाटर का उसको वो अवॉइड करेंगे. तो कुछ फीचर्स हैं जैसे कि एनिमल्स होते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में जिससे कि वो ड्राई कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं. ज़्यादातर प्लांट्स के ना स्पाइंस होती हैं, कांटे होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स. ठीक है, अब लीव्स नहीं होंगे तो वाटर लॉस आपका नहीं होगा. इनके स्टेम्स, लीव्स और रूट्स फ्लैशी होते हैं जिससे कि ये वाटर को एक्यूमुलेट करते हैं जब बारिश बहुत थोड़ी होती है. ओके, एंड कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि अपनी लीव्स को ही शेड कर देते हैं जब बहुत ही डेफिशिएंट रेनफॉल होती है. तो कॉमन एग्जांपल्स आपके ज़ीरोफाइट्स के हैं ये प्लांट्स. नेक्स्ट, अडेप्टेशंस इन माउंटेनस रीजन्स. Mountainous regions are cold and windy throughout the year. As such, plants in these regions are adapted to these conditions. Pine trees or conifers grow in abundance on mountains. These trees have cone-shaped tops with sloping branches. They also have pointed needle-like leaves. These adaptations do not allow the snow to settle on them. अब माउंटेनस रीजन का आपका बहुत ही कोल्ड और विंडी होता है थ्रू आउट द ईयर, है ना. तो अब यहाँ पे जैसे कि आपके पाइन ट्रीज या कॉनिफर्स हैं वो ग्रो होते हैं अबंडेंस में. इनके कोन शेप टॉप्स होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, राइट. उनके पॉइंटेड नीडल लाइक शेप्स होते हैं. तो जैसे स्नोफॉल होता है तो क्या होता है कि क्योंकि ये आपके किस शेप के होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, तो जो आपका स्नो होता है वो पे सेटल नहीं होता बल्कि स्लाइड ऑफ हो जाता है. Adaptations to environment in animals. Environments around the world change over time, and as environment changes, it becomes necessary for animals living in them to change and adapt to new conditions. Just like plants, animals too face similar problems in different kinds of habitats in respect of available water.
Animals have developed their bodies to adapt themselves according to the various habitats as described below. Aquatic adaptations. Fishes are an aquatic animal which are well adapted for aquatic life. Their body structure has the following features of adaptation. A. Streamlined body. Head, body and tail are compressed to give a long streamlined body. It is suited for active movement in water as it offers little or no resistance. B. Fins and gills. Fins act as paddles and control the direction of movement. Gills work as the respiratory organs and help in gaseous exchange in water. अब देखिए इन्वायरमेंट जो है हमारे वर्ल्ड में वो चेंज होता रहता है ओवर द टाइम. तो जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो ये बहुत नेसेसरी हो जाता है एनिमल्स के लिए कि वो जो नई कंडीशंस हैं उसमें अपने आप को वो ढाल ले, है ना. तो जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके हैबिटेट्स में. तो इसीलिए कुछ फीचर्स होते हैं जो वो जिनमें वो अपने आप को ढाल लेते हैं. जैसे एक्वाटिक एडेप्टेशन की बात करें, फिशेस आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब इनका हेड, बॉडी और टेल कंप्रेस्ड होते हैं जिससे इनको लॉन्ग स्ट्रीमलाइन बॉडी बन जाती है. तो ये पानी में एक्टिव रहने के लिए, पानी में इनका जो मूवमेंट होता है एक्टिव मूवमेंट के लिए हेल्प करती है. ठीक है. फिन्स जो होते हैं इनके एज अ पैडल ये यूज़ करते हैं, है ना, और जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन का उसको कंट्रोल करते हैं. गिल्स इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वाटर का उसमें हेल्प करते हैं. सी. स्विम एयर ब्लैडर्स. यूजिंग दीज ब्लैडर्स फिश आर एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स एट अ डिजायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर. अब इनके जो एयर ब्लैडर्स होते हैं, इन ब्लैडर्स के थ्रू जो फिश है वो क्या करती हैं, जैसे वाटर में ना डिजायर्ड डेप्थ में, जिस डेप्थ पे भी रहना चाहते हैं तो वो मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को, राइट. डेजर्ट अडेप्टेशंस. The adaptations of desert animals are actually the adjustment in living without water to conserve water and to protect themselves against high temperature, hot sand and enemies. The following are features of adaptation in desert animals. A. Most desert rodents live on dry seeds and do not require drinking water. Some rodents eat fleshy cacti or other plants that store water. Desert birds occasionally drink from dew and other sources. B. Most desert animals burrow deep into the ground to escape from the direct rays on the sun. C. Lizards hold their bodies away from contact with the ground on their long, thin legs. D. Protection against the natural enemies is achieved through protective coloration or a spiny covering on their body. E. Long limbs and padded feet to run easily on sand to long distance for food and water. F. Well-developed sense organs of sight, hearing and smell to help them in defense and attack. अच्छा, डेजर्ट एनिमल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है जहाँ बहुत थोड़ा पानी होता है ना, और मतलब जिसमें वो वाटर कंजर्व करते हैं, अपने आप को हाई टेम्परेचर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि ज़्यादातर जो डेजर्ट रोडेंट होते हैं वो ड्राई सीड्स खाते हैं, ओके, एंड उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ रोडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्लैशी कैक्टस को खाते हैं या दूसरे प्लांट्स को खाते हैं जो पानी को स्टोर करके रखते हैं. एंड डेजर्ट बर्ड्स जो होती है ना वो ओकेजनली ड्रिंक करती हैं, वो भी किससे, जो ड्यू होता है, राइट, या फिर दूसरे सोर्सेज से. ज़्यादातर जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो बूरों में रहते हैं, राइट, जिससे कि वो जो डायरेक्ट रेज है सन की उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लिजर्ड्स अपनी बॉडी को होल्ड करके रखती हैं ग्राउंड के कॉन्टैक्ट से दूर, अपनी उनकी जो लॉन्ग थिन लेग्स है उसके थ्रू. एंड जैसे नेचुरल एनिमीज से ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनका प्रोटेक्टेड कलरेशन होता है या स्पाइनी कवरिंग होती है इनकी बॉडी में. एंड लॉन्ग लिम्स और पैडेड फीट जो होते हैं जैसे कि आपके कैमल के होते हैं तो वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो सैंड होता है, राइट, तो उसको चलने में काफ़ी सहायता ये प्रदान करते हैं. इसके बाद जो वेल डेवलप्ड इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे साइट के या हियर के या स्मेल के, तो ये हेल्प करते हैं इनको डिफेंस में और अटैक में. आर्बोरियल अडेप्टेशंस. These adaptations help the animals in climbing and are found in various animals like squirrels, lemurs, rodents and lizards. Some arboreal adaptation features are as follows. A. Stout body and stout limb girdles give support to the body in climbing. B. Well-developed claws help in grasping and climbing. अब arboreal adaptation यानी वो animals जो आपके ट्रीज में रहते हैं, राइट, जो क्लाइंब करते हैं ट्रीज को, तो इनकी बॉडी जो होती है स्टाउट होती है और उनके लिम्स गर्डल भी स्टाउट होते हैं जिससे कि उनकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है क्लाइंबिंग के लिए.
इनके जो क्लॉज होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, जिससे कि ये क्या करते हैं, ग्रास्पिंग में इनको हेल्प मिलता है, क्लाइंबिंग में इनको हेल्प मिलता है। C. Adhesive pads. In some animals like tree frog, fingers and toes have adhesive pads that help in climbing and clinging to the trees. अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे ट्री फ्रॉग की बात करें तो इनके फिंगर्स और टोज जो होते हैं ना, एडेसिव पैड्स होते हैं, यानी वो चिपक जाते हैं, ट्री से क्लिंग हो जाते हैं और उनको क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। Adaptations in mountainous regions. Mountainous regions are cold and windy throughout the year. Animals living in these regions are also adapted to these conditions. They have thick skin or fur which protects them from cold. Polar bear and yaks have long hair to keep them warm. The mountain goat has strong hooves for scaling rocky slopes of the mountains. The snow leopard has thick fur on its body, including its feet and toes. This protects it from cold when it walks on the snow. अब देखिए माउंटेनियस रीजन में क्या होता है कि कोल्ड होता है, विंटर होता है थ्रू आउट द ईयर। तो एनिमल जो इस एरिया में रहते हैं उनकी थिक स्किन होती है, फर होते हैं जो कि इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। पोलर बेयर की बात करें या याक की बात करें, इनके लॉन्ग हेयर होते हैं जो इनको वार्म रखते हैं। माउंटेन गोट के स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जिससे ये रॉकी जो स्लोप्स होते हैं ना माउंटेन में, उसमें स्केल कर सके। स्नो लेपर्ड के थिक फर होते हैं, उसकी बॉडी पे काफ़ी थिक कवरिंग होती है फर की, और इसके फीट और टोज में भी होते हैं। ये इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं जब ये स्नो पे चलता है। Key points. There are 3 major types of habitats: aquatic, terrestrial and aerial. Roots, stem and trees of plants are adapted to survive in the various habitats. Animals have developed their bodies to adapt themselves according to the various habitats. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।